Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you in the economics class for class 12th, and I hope that you all are fine and safe at your respective places. I wish that we can meet face to face very soon, inshallah, because we miss the students, we miss the classroom, we miss the doors of school, and you too. No doubt पहले हमें डर लगता था स्कूल की स्कूल बेल से, बट नाउ वी मिस आवर स्कूल, वी मिस आवर फ्रेंड्स, बट लेट्स होप कि दिस टाइम विल be over and we will meet face to face. And now today we are in I'm your commerce teacher, and today I will take up session on economics, and that's for class 12th. And I hope because this is the foundation of economics, and I believe that a country is rich because of its economists. America is rich because of not because of scientists. And you should feel proud that you are a student of economics, as I have felt proud. I have fighted with my family in the very beginning. Okay, I will go for economics, math and statistics. And today I am very much proud because I contribute a lot as a student of economics. I know what's the financial management. I know what's the business management. I know what's the basic economics. I can talk, I can discuss about the economic phenomena. So let's feel proud that you are a student of commerce, you are a student of economics, you know accounts, you know management. And there are good books you might have seen. There are people like Warren Buffett in the world. He is a good manager. He is a good economist. We have in Indian countries, we have Anil Ambani, जिसका नाम आपने सुना होगा. And he is a true pioneer. He has done a management degree from Wharton, USA. So first thing, let's feel proud on the subject and know it very well. That's more important. I will share a simple story. When I was studying in the Kashmir University for my master's program, अगर हमें अच्छी इकोनॉमिक्स, हमें कभी क्लियरिटी चाहिए, जैसे आपको आज चाहिए कि वांट सम कंसेप्ट जो आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, तो आप बिलीव नहीं करोगे. हम इकोनॉमिक्स टीचर के वी यूज्ड टू गो टू ए स्कॉलर. ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, बट ही वाज हैविंग द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक concepts. So my dear friends, I'm your friend, and I will teach you economics what my teachers have taught me, and they have taught me that what should an economics student know. He should know, he should be ahead of rest of the students in terms of finance, in terms of banking, in terms of monetary concepts, because I will start with one of the powerful inventions of economics, that's money. जिसके पीछे सारी दुनिया है, money. It's a powerful invention of economy. जैसे we have seen that the biggest invention of this century was wheel, but that was something advent. Wheel was the biggest invention क्योंकि सारा system जो machinery, all kinds of machinery is because of wheel. You see all the, चाहे हम कार से start करेंगे, घर में एक छोटे से गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसमें you will find the concept of wheel. अगर आप क्रूज मिसाइल की बात करेंगे, उसमें भी you have a concept of wheel. But that's something advent. No one have created it. But it's something money. We call it usually, मेरे एक फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं, उसको नाम है मिल्टन फ्रेडमैन. मिल्टन फ्रेडमैन. Milton Friedman, he's an American economist. He's the man behind America. He has contributed a lot to the American economy. And he says that money is like a sixth sense. You know, usually we have a five senses. हमारे पास 5 ही senses हैं, but he says that money is like a sixth sense. Money is like a sixth sense, जिससे वो 5 senses काम करते हैं. Money is like a sixth sense, which makes all the 5 senses work.
So feel proud. We have given lot of concepts, lot of inventions are in economics. Different models economists ने दिए हैं, or we as a managers, we as a accountants, we have given lot of concepts to the world. So let's feel proud on this subject. So let's begin. I hope मैंने दो चार बातें आपसे की, आपको लगा होगा कि नहीं, we should feel ahead. So now today we will discuss first थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको बताऊं. जो 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, माशाल्लाह it's a very well crafted syllabus. Our syllabus is divided into two parts जो आपने जाना भी होगा. First is the microeconomics and other is the macroeconomics. We have a two. It's 100 marks and with this we have a paper pattern which is purely CBSE pattern now we call it. इसमें क्या है कि you have to read it well. आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि economics is purely about concept. It's purely about concept. It is not something कि आप कोई चीज याद करो पूरे साल फिर एग्जाम में वॉमिट करो. No, not at all. तो हमारी सब्जेक्ट ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट्स प्योरली ए कंसेप्चुअल पेपर. आपको बस समझना है और आपके डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड. जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेंशन की मैंने बात की, मनी की बात की, एक इन्वेंशन है हमारी. तो इस इन्वेंशन से एवरीवन इज आफ्टर मनी. It's an invention of economists. It's an invention of we people as a part of economics. So now we will start off with basic introduction to the syllabi. Syllabi से मैं अब start करूँगा और उसके syllabi का जो पहला chapter है that's introduction to microeconomics. उसमें इंशाल्लाह I will try to conclude with micro and macro की एक distinction हम करेंगे. We will draw a line between microeconomics and macroeconomics. After that एंड सबसे अहम चीज जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिसके लिए हम बने हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. जो हमारा मकसद है कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोथ एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल. एंड आफ्टर दैट इफ टाइम परमिट्स आई विल कवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो हमें इस क्लास के बाद व्हाट शुड आई हैव. अगर मैंने क्लास एक घंटे की क्लास मैंने पढ़ी या मैंने पढ़ाई आपने सुनी तो हमें क्या हासिल होना चाहिए. पहला चीज मुझे एक इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मुझे पता होना चाहिए. आई शुड बी एबल टू नो द बेसिक इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आई शुड नो. वी कॉल इट एलो लर्निंग आउटकम. अगर मैं कोई काम करता हूं मेरा हासिल क्या है ये इंपॉर्टेंट है. आप भी हमेशा बट अल्बर्ट आइंस्टाइन इज क्लियरली टेलिंग अस यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई. ये मेरा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दे आर मोर ऑफ माय फ्रेंड्स नाउ आई टेल देम यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन मार्क. व्हाई हम क्यों ये चीज पढ़ते हैं. यू शुड रेज द क्वेश्चन. टाइम इज नाउ ओवर कि जो टीचर वाज समटाइम्स टेलिंग अस नो दिस इज लाइक दैट. नो इट्स नॉट लाइक दैट नाउअडेज. यू शुड आस्क विद व्हाई हम क्यों ये पढ़ रहे हैं. ये मेरी एक आपसे एक ना रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है. यू शुड ऑलवेज से टू योर टीचर that why मैं ये क्यों पढ़ता हूं. मैं why I study microeconomics. This is the question. So first मुझे हासिल होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं. उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है. व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है इसका वो भी आई शुड नो. थर्ड आई शुड बी एबल टू नो कि प्रॉब्लम सेंट्रल स्कैर्सिटी क्या है. स्कैर्सिटी एंड चॉइस यूजुअली कहते हैं. स्कैर्सिटी एंड चॉइस. Scarcity and choice. I should be able to distinguish between what is scarcity and what's the choice, जो basic principle से derive होता है. उसके बाद central problems का एक solution I should be able to find, जिसके मैं आपको rules समझाऊंगा. तो now let's start with the origin of economics. Hope you all know it because you are in class 12th. You know economics is all about. But I will start with one thing. जो definitions आपने economics की पढ़ी हैं, thousands definitions आपने देखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, starting from Adam Smith. Usually हम वहाँ से start करते हैं, Adam Smith से, है ना?
We start with Adam Smith. We see that he said in 1776 he wrote a book. इसमें उसने इकोनॉमिक्स से कहा कि एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. इस बुक के बारे में सभी जानते हैं. वी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, लेकिन अदर्स आल्सो नो इट बिकॉज दिस इज द किताब ही ऐसी है. इट्स एन एनक्वायरी इनटू नेचर. हाँ, इसमें मैंने बोर्ड में देखा जब हम एवल्यूएशन करते हैं तो आप एक चीज़ है कि आप बुक का जो पहला वर्ड है ना, ये इंग्लिश, आप इसको यूजुअली यू शुड कैप अपर कैप्स में आपको लिखना चाहिए. इट शुड बी कैपिटल. एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. वेल्थ ऑफ नेशंस. इसको शॉर्ट में ना, इट्स फेमस फॉर ओनली वेल्थ ऑफ नेशन, बट पूरा टाइटल ये है. यूजुअली यू हैव रेड इट इन क्लास 11th और क्लास 9th ऑनवर्ड्स, बट मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वेल्थ असल में है क्या. वेल्थ के बारे में जानने को इकोनॉमिक्स कहते हैं. इससे पहले एरिस्टोटल ने कहा था, एरिस्टोटल was a great scholar. एरिस्टोटल ने कहा था इट्स एन आर्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. हाउस होल्ड मैनेजमेंट शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव यू आर एफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस. हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सी, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड मैनेजमेंट, फिर वेल्थ ऑफ नेशंस, फिर आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. गुप्तास टाइम में आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. स्टेट क्राफ्ट मुल्क को चलाने को इकोनॉमिक्स कहते हैं. जो ना आजकल चाणक्य एक बड़ा नाम है आज उसकी इकोनॉमिक्स को. आज हमारी नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है. चाणक्य एंड थाराकुल, दिस आर टू इकोनॉमिस्ट्स इन गुप्ता's earlier times. Art of statecraft. So there are thousands and thousands of definitions of econ, but main focus is on one important thing, that's a resource. इसको थोड़ा सा हम गहराई में जो इस definition में extract करना चाहता हूँ, that's a resource. So now there's a term called a resource. असल में इस पे एक इकोनॉमिक्स का ऑरिजिन है. जो मैं प्रिंसिपल्स की बात कह रहा हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा. तो रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब आप अगर इफ यू थिंक इट, आपके आसपास जो भी चीज़ है वो रिसोर्स है. एवरीथिंग, इवन आई कैन कॉल एवरी सबस्टेंस, जो भी जर्रा, इवन सबस्टेंस. मेरे पास ये चाक है, इट्स एन रिसोर्स. इवन डस्ट, दैट्स अ रिसोर्स. एवरी सबस्टेंस जो भी दुनिया में है, जिसके कुछ पॉजिटिव यूज है, या समटाइम्स वी कैन हैव अ न्यूक्लियर bombs that have a negative, that's a resource. मुल्क के पास that's a resource. So now यहाँ से बात स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. यूजुअली हम कहते हैं, इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं रिसोर्सेज स्कैर्स है, कि ये कम है ना. रिसोर्सेज आर स्कैर्स. अब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स हर उस सबस्टेंस को कहते हैं, हर उस मटेरियल, जो फिजिक्स में हमारी थ्योरी है, हर एक सबस्टेंस जिसके तीन चीजें हैं, तीन प्रॉपर्टी हैं. रिसोर्स हर एक चीज है जिसकी तीन प्रॉपर्टी है. पहला है इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा मतलब इट्स हर एक चीज के पास है सम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एबिलिटी. और जो हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग विथ सम पर्पस. ये हम जान, ये हमारा मतलब एवरी religion in this world believes in that whatever is created it has a purpose. It has a purpose. Sometimes हम अपनी कभी ना अपनी अकल लगाते हैं, नहीं ये चीज़ नहीं होना, सांप नहीं होना चाहिए, कुत्ते नहीं होने चाहिए, but everyone has a purpose. Everyone is a resource of his own.
तो सबस्टेंस इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो हम इकोनॉमिस्ट ने इसको दिया है दैट्स कॉल्ड मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, दैट्स अ मार्केटेबिलिटी। रिसोर्स हर एक चीज को कहते हैं जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। वन इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी है क्या? वी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हैव डिस्कस्ड लॉट अबाउट मार्केटेबिलिटी, बट शॉर्ट में मैं कहूं ये असल में प्राइस का नाम है, जहां पे प्राइस फिक्स हो किसी चीज का। प्राइस, मैंने पहले आपसे कहा कि मनी इज द इन्वेंशन, मतलब ये ऐसी एक खोज है इकोनॉमिस्ट्स की कि शायद ही कोई, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं आई हैव स्टडीड इन दिल्ली, तो वहां पे मेरे टीचर्स मुझे कहते नहीं सबसे बड़ी इन्वेंशन प्राइस है देन मनी। हमें डॉलर्स अच्छे लगते हैं, वी लाइक इंडियन करेंसी और कुवैती दिनार, बट my teachers used to tell me that price is the biggest invention. Price, किसी चीज को, how we can say this duster is 20 rupees or 30 rupees. मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, लाइक आप में से फ्यू स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है वो कहेंगे सर इसमें जी कॉस्ट लगता है इतना। कॉस्ट इज अगेन अ प्राइस ऑफ समथिंग, इसमें इतने में कॉस्ट लगता है, वो क्यों इस रेट का है? तो देयर इज अ थ्योरीज बिहाइंड इट। तो इट्स द बिगेस्ट इन्वेंशन प्राइस। एंड नाउ वी हम इकोनॉमिस्ट काफ़ी बदनाम भी है कि ये जी एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं। ये कहते हैं जी फैक्ट्री जी बनाओ, बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं रोड्स बनाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो ये एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। नो नो नो, नॉट एट ऑल, बट वी यूजुअली थिंक ऑफ ट्रेड ऑफ। हमें पता है दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। वी डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अपनी क्लास 12th में टर्म सेकंड में पेपर बी में अच्छे से पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वी हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वी बिलीव, आई हैव taught students that let's do something not only on paper, कुछ sapling some इस दिन लगाएंगे on 5th June. I started off my own, and that's a good thing. So that is sustainability. हम कभी एनवायरनमेंट के खिलाफ नहीं वरना होंगे, क्योंकि इट्स ऑल लाइफ सस्टेनेबिलिटी। वी हैव अ वन ब्रांच इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड एनवायरमेंटल साइंस, जो IGIDR मुंबई एक बड़ा इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे काफ़ी बड़ा काम होता है इंडिया में। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक काफ़ी अच्छा ब्रांच है और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो इंजीनियरिंग वाले इकोनॉमिक्स में आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को भी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, तो वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। हाउ वी कैन, जो हमारा कंसेप्ट है 5 R's का, रिड्यूस रीयूज़ वगैरह का, तो उस पर काम करते हैं। दे थिंक ऑफ कि हम इस वेस्ट को भी कैसे रिसोर्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेस्ट है वो भी हमारे पास रिसोर्स है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो नाउ रिसोर्स क्या है जिसमें 3 चीजें, 3 प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल एनर्जी, मार्केटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब सवाल है, इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्स आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो हाउ डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर रियली स्केर्स, कि हमारे पास कम चीजें हैं? दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यू शुड डू। आप सोच कि सच में रिसोर्सेज कम है? तो मेरे लिए we usually write resources are scarce and have alternative uses. I will wrap it up. So अभी तक मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की, माशाल्लाह ये आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन इनको एक एज अ प्राउड इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो दीज थिंग्स वेरी वेल। मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे आपको कही जो शायद आपने नहीं, दैट्स रिसोर्सेज। उन चीज़ों को कहते हैं विच हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नाउ अब 2 उसूल है जो याद, जहां से इकोनॉमिक्स ने जन्म लिया है। वन इज, हम कहते हैं ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज स्केर्स है। स्केर्स मीन्स कम, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा गहराई में। रिसोर्स आर स्केर्स, और इस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस।
ये दो अहम चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्स आर स्केर्स एंड। मैं आपके पास एक सवाल रखूंगा। दुनिया में यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ अनिल अंबानी, क्योंकि हर घर में जियो है आजकल। अनिल अंबानी का नाम आपने सुना होगा काफ़ी। अनिल अंबानी, मैं इंशाल्लाह जब मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा उसमें आपको इन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ मैनेजरल स्किल्स दे आर मेकिंग। तो रिसोर्सेज आर स्केर्स। अब अनिल अंबानी की बात करेंगे जिसकी एक दिन की इनकम कभी कभी ना वो मतलब इन करोर्स तो है ही, रुपीज करोर्स, 1 करोड़ प्लस प्लस। कभी कभी एक मिनट में स्टॉक एक्सचेंज में ही अर्नस मोर देन 1 करोड़। ऐसे हजारों लोग हैं मतलब इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। नाउ टेल मी, क्या इसके पास कमी है रिसोर्सेज की? कैन वी कॉल दैट अनिल अंबानी हैज स्कैर्स रिसोर्सेज? और हम खुद की बात करेंगे। चलो हमारे पास तो शायद होंगे क्योंकि वी आर बिलोंग टू समर बिलोंग टू मिडिल क्लास, कुछ पुअर हैं कुछ। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। थोड़ा सा आई वांट टू डेवलप योर क्रिएटिविटी कि अनिल अंबानी के पास जो रिसोर्स को कम है। तो एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि आई एम गिविंग यू माई ईमेल एड्रेस और नंबर, तो मुझे आप इंशाल्लाह SMS करेंगे या मैसेज करेंगे उस पर कि इसके पास रिसोर्सेज कम हैं कि ज़्यादा है। एंड आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स आल्सो टू एनकरेज, डोंट डिफ्रेंशिएट। कभी कभी उनको लगता है कि शायद ये इज़ अ पर्सन फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो उसको ज़्यादा पढ़ाई करनी हो, इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड उसको कम। नो नो, नॉट एट ऑल। इवन वंस वी आर इन दिल्ली, इट्स अ टॉप, जो जिनकी सबसे अच्छी रैंक होती है बोर्ड में वो दे ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स। हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं 99 पॉइंट समथिंग जो मेरिट होता है उनको इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है, कॉमर्स में एडमिशन मिलता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो जी इंजीनियरिंग मेडिकल वाले काबिल होते हैं। नो, हमारे मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ इकोनॉमिस्ट। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, बट I will say second principle I will discuss. Resources are scarce and have alternative uses. Now, जो इंसान की, क्योंकि it's a relative concept. अनिल अंबानी करोड़ों कमाता है, लेकिन उसकी जो जरूरत, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट, वी कॉल इट अ रिलेटिव कंसेप्ट। इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। हर इंसान के जो रिसोर्सेज उसके पास होते हैं उसके अगेंस्ट में उसकी जो वांट्स होते हैं दे आर अनलिमिटेड। सो दूसरा, वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आई विल ऐड वन मोर थिंग टू इट जो शायद आप बुक पे नहीं देखेंगे, एंड कीप ऑन चेंजिंग। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें दूध की ज़रूरत होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी ज़रूरतें। और नाउ टुडे वी नीड अ गुड मोबाइल फ़ोन, नाउ वी कैन डिमांड आवर पेरेंट्स दैट वी नीड अ गुड फ़ोन। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड है। सो इसके अगेंस्ट में जो इसको रिसोर्सेज मिलते हैं वो हमेशा कम लगते हैं। रेस्ट मतलब एज अ आई हैव रेड अ बिट फिलोसफी, तो रिसोर्सेज यूजुअली कम नहीं है, बट इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो शायद ज़्यादा है। तो रिलेटिवली वी कैन कॉल इट रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि हमारे पास पैसा है, मनी इज अ रिसोर्स, तो हम इसको ऑल्टरनेटिव यूजेस मीन्स वी कैन यूज। जैसे हम एज अ स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ मुझे घर में पैसा मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, तो आई कैन डू इट मनी थिंग्स फॉर इट। आई कैन गेट एन आज समर्स में आई कैन गेट आइसक्रीम, I can use it for ice cream, or I can get a good pen
or I can save it, और मैं एक्स्ट्रा डेटा पैक लूँ आज, है ना, क्योंकि जियो वाले हमें कम देते हैं एक्स्ट्रा डेटा पैक, अब है ना, तो it has alternative uses. How I will spend it? Now this is the question for economists and all the human beings in the world. And इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स वाले बैठे हैं, हाउ टू स्पेंड दिस मनी अमंग दिस ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो यहाँ तक हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया. इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ओरिजिन दिया, क्योंकि माशाल्लाह आजकल यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस और यू कैन डाउनलोड डेफिनेशंस, बट फंडामेंटली याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स कब ओरिजिनेट कब हुई, जब हमारे पास जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं. तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो वो कम हैं. तो दैट्स वाई वी हैव टू थिंक अबाउट द वन कंसेप्ट, जहाँ से जिसको मैं इकोनॉमिक्स डिफाइन की है, दैट्स कॉल्ड चॉइस. So, my dear friends, now there's a concept called choice and scarcity. That's why I said that ये सबसे अहम concept है economics में, scarcity and choice. Scarcity and choice. तो बेसिकली मैं जहाँ तक इकोनॉमिक्स को समझता हूँ, मेरे लिए इट्स simply a science of choice. अगर शॉर्ट में मुझे डिफाइन करना हो ना इकोनॉमिक्स, तो मैं कहूँगा इट्स साइंस ऑफ चॉइस. एंड ट्रूली इट्स चॉइस मीन्स डिसीजन मेकिंग. दैट्स वाई जो बड़े पावरफुल पोजिशन है ना दुनिया में, वो इकोनॉमिक्स को मिलती हैं. It's a decision making science. And usually we have written that, we have read that it's an economics is an art, it's a science, it's a social science or a behavioral science. But purely to me it's all the three. It's a skill, art, but Aristotle said that it's a science which martial definition जो आपने पढ़ी होगी, it's a social science. अब क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक जंग है, आप समझो ये जंग है बिटवीन स्कैर्सिटी एंड चॉइस. हमारे पास ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो कम है. तो इनको पूरा करने के लिए एक डिसीजन हमें लेना है, जो पूरे फ्रॉम बनी आदम से लेके टिल डेट तक एक डिसीजन मेकिंग है. दैट्स वाई आई कॉल इट अ डिसीजन मेकिंग साइंस, जो एक लॉरेंस रॉबिन्स की डिफिनीशन है, वो मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दैट डेफिनेशन. रॉबिन्स कहता है Lawrence Robbins. He was person from this lady from London School of Economics, LSE. क्योंकि सबका ख्वाब होता है जो माशाल्लाह इकोनॉमिक्स कॉमर्स पढ़ते हैं, फिर वो ख्वाब देखते हैं कि हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाए. जैसे मैंने भी देखा था कि होप आपकी दुआ से कि आई विल रीच देयर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि बड़े बड़े जो नाम आप पढ़ रहे हैं किताबों में वो सब यहाँ से मैक्सिमम लोग निकले हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. तो उसने कहा इकोनॉमिक्स इज a science. Economics is a science, is purely a decision making. It's purely a decision making science between two things. Ends. She has used ends and scarce resources. Scarce means इसकी definition. That's why I like this definition. Ends we call it. These are basically wants, human wants. Not only human. There's one more thing. We have animals, livestock with us. उनकी ज़रूरतें भी हैं.
नो डाउट वो इंसान के लिए हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स, तो कभी कभी शॉर्ट नैरो सेंस में हम कहते हैं ह्यूमन वांट्स ऑनली, नो, वी हैव अ लाइफ स्टॉक विद अस, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी पूरा करना है। वी हैव अ एग्रीकल्चर विथ अस, जो मेन टॉपिक आपने पढ़ा होगा 11th में। तो एंड्स ज़रूरत है, और जो स्केर्स मीन्स है, मीन्स रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज, जो मैंने बात आपसे की है। दैट्स ये डिफिनीशन मेरे दिल के पास है। सो Robinson said that कि it's a science deals with ends and scarce means where we study the human behavior. So here comes economics is the science of decision making. That's why once we have to take the decision, it should be purely a scientific decision. It should not be like rule of thumb or trial. It should not be like that. As a professional, as a student of commerce, I should be able to take the decision. We should base it on a scientific logic. That's more important. ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि you should take the decision. You should keep all those, जैसे अपने कॉमर्स में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक, जैसे मैनेजमेंट में हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, हम हर एक चीज़ का एक एस फॉर यू माइट बी नोइंग इट, इट्स अ स्ट्रेंथ, ये मैनेजमेंट में हम करते हैं जब MBA। स्ट्रेंथ, हर एक चीज़ की एक स्ट्रेंथ है, हर एक रिसोर्स की एक स्ट्रेंथ है। वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, एंड देयर आर सर्टन limitations, it's called a weakness, and everything in this world has opportunity, and everything in this world has kind of a threats, like today we are facing a threat of COVID-19. So my decision, as a student of economics, मेरा जो decision होना चाहिए, that should be purely scientific, that should be based on a scientific managerial theories, they should be based on some logic. जैसे मैंने सवाल आपसे कहा कि हमेशा वाई से स्टार्ट कीजिए आप। तो नाउ जो डिसीजन, जो हमें डिसीजन मेकिंग साइंस है, तो डिसीजन क्या लेना है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है नाउ इकोनॉमिक्स को हमने, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो क्लास 12th में है, वी हैव 5 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, यस 5 सब्जेक्ट्स। वन इज जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इसको हमने डिवाइड मेनली क्या है, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, MI, माइक्रो मीन स्मॉल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हमारा पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड वी स्टडी which can be a part, but advanced level पे they are separate, that's called monetary economics, जिसमें हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, monetary economics। उसके बाद we have there's a one important thing जो हमें गवर्नमेंट में भी एक हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज़्यादा है, दैट्स वी नो समथिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस। मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा ये क्या है फाइनेंस। एंड जो लास्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। That's why I said that you are lucky enough to, you are studying good number of things in class 12th. No doubt syllabus I understand कि ज़्यादा है, but these आपको 5 सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलती है, क्योंकि आजकल हम मार्क्स का दौर अब ख़त्म होने वाला है। आजकल जिसको हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं, आप कितना जानते हैं सब्जेक्ट को, वो इम्पोर्टेंट है। जो मेरी कोशिश है, और मैं चाहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं कहता हूँ नहीं आप मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि नई पॉलिसी जो हमारी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें
इट्स क्लियरली मैंशनड कि एग्जामिनेशन हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, तो इसलिए आप थोड़ा सा गहराई में पढ़ सकते हैं, जिसका एक वेटेज अब मिलेगा, जिसको कॉम्पिटेंसी कहते हैं. यू शुड बी एबल टू से, अगर आप को कल कहेंगे कि वाई this is happening in government, this is happening in banks, this is happening in somewhere in international trade, so you should be able to see with an argument, no, this is because of this. Usually suppose मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, रिसेंटली मैं एक क्लास में एक पेट्रोल, यूजुअली पेट्रोल का प्राइस कोविड में क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली यू विल से इट शुड बी रिड्यूस्ड, है ना. इट्स अ सिंपल लॉजिक, बिकॉज 2 साल से हम 2019 ऑनवर्ड्स हम पेट्रोल को यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन लॉकडाउन होता है, तो पेट्रोल ज़्यादा अब है, इसका प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इट इज़ इंक्रीजिंग और शार्पली इंक्रीज हो रहा है. अब मैं पेट्रोल पंप पे देखता ही नहीं हूँ कि आज प्राइस क्या है, क्योंकि वो बड़ा बुरा लगता है उसकी तरफ देखना है कि इतना इंक्रीज हो गया प्राइस विद इन दीज डेज. इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड हैव ऑल द लॉजिक टू से टू अदर non-commerce student, non-economic student, you should able to say them, no, this is why it has increased, there's a logic behind it. इसके पीछे एक लॉजिक है, there's a logic behind it, कि why price petrol prices has increased, why government is taking out of, जो अगर 100 रुपये आज प्राइस है पेट्रोल का, why government is taking 56 rupees as tax, 56%, that's 56 rupees as tax, it's a government. Why prices has increased? चलो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ सवाल मैं आपके लिए रखूंगा, लेकिन कुछ का मैं बताऊंगा, मे बी यू माइट बी नॉट नोइंग. एक सिंपल सा रीज़न ये है कि देयर इज अ स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि जो जहाँ से हम तेल निकालते हैं क्रूड ऑयल, तो वो इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो, वो आप बंद नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जैसे वाटर टैप है हमारा, हमने बंद किया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज़ टू कंटिन्यूसली. तो जब वहाँ इंडिया में स्टोरेज की प्रॉब्लम है पेट्रोल में, जब लोगों ने कंज्यूम नहीं किया तो ऑब्वियसली इसको स्टोर करना है, तो देयर इज अ स्टोरेज प्रॉब्लम, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है. अब जहाँ इनको स्टोर करना है पेट्रोल को, इट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लीटर्स, अब स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास जगह होगी स्टोर करने की, आई वोंट गिव फ्री टू ONGC और OIC, मैं इनको फ्री में नहीं दूंगा, तो आई चार्ज प्राइस फॉर, दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज. और गवर्नमेंट भी आजकल समझो गरीबी है, तो ऑब्वियसली वो इसी पे टैक्स ज़्यादा लगा के अपना खर्चा चला रही है. तो नाउ जो हम 5 ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, इसमें माइक्रो, मैक्रो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड. माइक्रो के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, और थोड़ा सा मैक्रो को हम डिस्टिंग्विश करेंगे. बाकी इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर्स है उसमें आई विल टॉक अबाउट द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जो आपको सबको अच्छी लगती होगी, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ मतलब. उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस, दैट समथिंग जो आपने बजट वगैरह सिलेबस में देखा होगा, जो बजट के बारे में हम पढ़ने को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं. और इंटरनेशनल ट्रेड तो माशाल्लाह एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, we usually wear this branded goods, so obviously it comes from other countries. International trade. So let's start with the micro and macro economics. और इसके अलावा भी हम 5 ब्रांच पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी there are hundreds of branches. Even we हमारी एक कोलीग थी दिल्ली में, वो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स पे काम कर रही थी. स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स मतलब मैं हैरान हो गया सुन के. स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इवन जो मेडिकल जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो भी पढ़ते हैं डिफरेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ना इन टर्म्स ऑफ बायो इकोनॉमिक्स. सो नाउ आवर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इकोनोमेट्रिसेस, कुछ बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह आगे आप सुनेंगे. बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो, एंड ऑब्वियसली इट मीन्स something small, and macro means something large. And now in this I will make the clear distinction, because here we have to understand it and understand it properly. ये मेरा एक टॉपिक है आज, मतलब कि I should be able to distinguish between micro and macro economics. और उसके बाद प्रॉब्लम, स्मॉल लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है और लार्ज लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, जिनका हमें सोल्यूशन निकालना है. एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स
I should be able to solve these problems with the help of economic theories, models and concepts. तो now ये दो concepts हैं, ये हमने ये recent phenomena 1930s में economics को divide किया into these two parts. 1930s इससे पहले economics थी, लेकिन ऐसे माइक्रो मैक्रो को अलग नहीं किया गया था. इट्स रगनार फ्रिंच एक नाम है. I hope your board is visible for you. Usually it's good to write with the chalk, but nowadays you have some digital boards. Why you use your this? Now micro and macroeconomics, it has been 1930s में divide हुआ between two main pillars we call it of economics, micro and macroeconomics. तो यहाँ पे क्या है, इट्स यूजुअली जब स्मॉल की बात आती है तो क्या स्मॉल हम पढ़ते हैं, इसमें कहते हैं इट्स इंडिविजुअल और इंडिविजुअल. माइक्रो मीन्स इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. तो यहाँ पे वी कॉल इट अ लार्ज. और एग्रीगेट. Call it a large or aggregate economics. So what's microeconomics? That's main important to distinguish between the two, and what's the subject matter of both. So microeconomics is a study of, it's a study of तीन लोगों के बारे में है. आपने शायद दो ही देखा होगा बुक पे, लेकिन तीन लोगों के बारे में मैं बताऊंगा. इट्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, और तीसरा इट्स अ रिसोर्स ओनर. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में जानने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में जानने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. एक इंडिविजुअल रिसोर्स ओनर के बारे में जानने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब कंज्यूमर के बारे में क्या जानना है हमें कंज्यूमर और हर एक इंसान. अब ये एक मिसकंसेप्शन है इकोनॉमिक्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, कि हम हर एक इंसान जो है दुनिया में ही इज अ कंज्यूमर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर. वही एज ए इंडिविजुअल. आप देखिए, आप दिन में हम तो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं एज अ स्टूडेंट. हम खासकर लॉकडाउन पीरियड में हम वी कंज्यूम एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो प्रोड्यूस सर्टन थिंग्स. हम घर में एटलीस्ट खुद के लिए तो सम कॉफ़ी हम बनाते ही हैं, सम के लिए सम मैंगो शेक और सम we have produced something. So कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड रिसोर्स ओनर के बारे में जानने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. दिस द कंक्रीट डेफिनेशन. अब कंज्यूमर के बारे में क्या जानना है हमें, प्रोड्यूसर के बारे में क्या जानना है. पहले उसका बिहेवियर. हाउ ही बिहेव्स with respect to different things, goods and services. उसका बिहेवियर कैसा, प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा, रिसोर्स ओनर का बिहेवियर कैसा है, हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, हाउ दे बिहेव इन कोविड कंडीशंस. दे स्पेंड लेस और मोर. वी हैव टू सी दैट. आज शादियों का सीजन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर और लेस, तो इट्स अ बिहेवियर. इट माइट हैव चेंज्ड. नाउ दे स्पेंड लेस. वाजवान पे आजकल कम खर्चा होता है. सो नाउ एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ रिसोर्स ओनर, हमारा वी स्टडी द बिहेवियर, एग्रीगेट बिहेवियर. लेकिन अब ये तो दो लोग हैं, इसको हम कंज्यूमर को बायर भी अगर सिंपल टर्म्स में कहेंगे, इट्स अ बायर. और इसमें एक चीज थोड़ा सा एक ना सो पॉइंट में बताऊंगा कि कंज्यूमर यूजुअली हम समझते हैं एक इंडिविजुअल को, मतलब इंसान को. नो, इट्स नॉट ऑल. हमारी गाड़ी इज अ कंज्यूमर. मेरी कार जो है दैट्स अ कंज्यूमर बिकॉज इट कंज्यूम्स समथिंग लाइक फ्यूल. इट कंज्यूम्स फ्यूल.
तो कंज्यूमर याद रखना है, इट्स नॉट ओनली द इंडिविजुअल, इट कैन बी मशीन. कार इज अ मशीन, कार इज अ मशीन, तो इट्स ऑल्सो अ कंज्यूमर. थोड़ा सा मैं मतलब जैसे दिल्ली में हमें पढ़ाते हैं कि थोड़ा सा समझेंगे थोड़ा गहराई से. कंज्यूमर जो कोई चीज़ कंज्यूम करता है, गुड और अ सर्विस. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है गुड. इट्स नॉट अ गुड विच वी स्टडी इन इंग्लिश, गुड और अ सर्विस. क्योंकि कुछ बच्चे कॉमर्स के बच्चे नए भी हैं इस, तो गुड यूजुअली थिंग्स को कहते हैं, चीज़ों को कहते हैं, थिंग्स इन इकोनॉमिक्स. कोई सा भी चीज़ कंज्यूमर गुड, गुड्स और अ सर्विस. सर्विस मीन सपोज मैं आपको पढ़ाता हूँ आज, आई गिव माई सर्विस एज अ फैसिलिटेटर और एज अ टीचर, आई गिव माई सर्विस. आपका ड्राइवर अगर घर में हो वो आपको सर्विस देता है. आप लॉयर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो, दे गिव देयर सर्विसेज. तो याद रखना गुड एंड अ सर्विस, क्योंकि गुड एंड अ सर्विस आप हमेशा देखोगे इकोनॉमिक्स में. दैट्स वाई गुड मीन्स जो चीज़ें हैं, सर्विस मीन्स अ पर्सन और अ ह्यूमन एफर्ट और अ मशीन कैन गिव यू सम फैसिलिटेशन, सम सर्विस. तो याद रखना. तो आई होप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा समझ आया होगा. लेकिन अब इसमें एक अहम चीज़ है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर वो क्या है. इट्स सब्जेक्ट मैटर, आई होप यू माइट बी नोइंग इट इफ यू आर वाचिंग इट. इट्स सब्जेक्ट मैटर इज समथिंग जो मैंने अभी कहा, जो मेरे, दैट इज PRICE, price. That's why we call it a price theory. We call it a price theory. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में we call it a price theory. Why we call it a price theory? Because it decides the price. Microeconomics is also called a price theory because it decides the price. How? See, I told you there are three persons. One is the consumer. I will start with the two person, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, थर्ड वाला पर्सन. एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर. जो हम सिंपल लैंग्वेज में वी कॉल इट अ बायर और अ सेलर. When they consume, when they interact with each other, they make a market. Once they make a market, they decide a price. That's why I said the invention of microeconomics is the price theory. So now I will conclude this lecture with few important things. First is, we should feel proud as a commerce student. Second, we should know economics, business studies, or accounts and deeply, again conceptually, rather than something for the examination. No, not at all. So now I have discussed a few things like economics, distinction between micro and macroeconomics, and more. How I will conclude with important thing, that's central economic problems. I will write those 4-5 problems, and with this I will conclude. One is a consumer. In a microeconomics we have a central economic problem. Central economic problem is a micro level, that is what to produce. Second is how to produce. थर्ड इज होम टू प्रोड्यूस. ये तीन आपने बुक्स में देखे होंगे, लेकिन दो और मैं ऐड करूंगा. व्हेन टू प्रोड्यूस, हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करना है कितना बनाना है. ये जी हमारी हु प्रोड्यूस, हु सेज दैट हाउ मच वी हैव टू मेक इट. So these are the 5 economic problems which I will discuss in the next lecture when we will meet again. So till that, I request you all to feel proud on your subject as a student of commerce and economics, and learn well from book, especially from the NCERT books,
especially from the board textbooks, rather than from these flimsy notes and other things. No, textbook is the best guide. You should read from the textbook, and the concrete things are there. And 5 subjects you are studying in a class 12th, so that's why you have to read it well. कल आप किसी भी लेवल 12th के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे फॉर योर कॉलेज लेवल, तो अगर आपने ये अच्छी से पढ़ा है, इवन केस एग्जाम में जो हमारा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसमें 12th लेवल का मैक्सिमम पेपर ए में आ जाता है. तो दैट्स वाई इस क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को आप सीरियसली लेंगे. ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक एडवाइस भी है, और ये आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगी एंड बिल्ड ए कॉम्पिटेंसी रादर देन ओनली एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच. माई contact details I will mention here, क्योंकि I have put some questions to you, so you can write to me on SFY PhD ECO @gmail.com. SFY PhD ECO @gmail.com. My official number is 9596100306. You can in official hours, I might be busy at SCRT level, but still you can I will reply back definitely for the questions which I have posed to you, and hopefully we can meet soon. Thank you and thank you. Allah bless you all. मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत. बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी।